یہ وہ غلام نبی آزاد صاحب ہے کہ جس نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے بسانے کی بات کی، بے روزگاری ختم کرنے کی بات کی، یہاں تحصیلیں اس نے کھولی، ڈسٹرکٹ کھولے، ہسپتال دیے، روزگار دی، زمین کی جو ہے مالکانہ حقوق غلام نبی آزاد صاحب نے دیا۔ آزاد صاحب نے جو ہے کانگریس کو دھوکہ دیا ہے۔ 50 سال کانگریس میں انہوں نے راج کرنے کے بعد کانگریس نے ان کو بہت بڑا عہدہ دیا، چیف منسٹر بنایا اور مختلف جگہوں پر کام کرنے کا موقع دیا، لیکن اس وقت جو ہے آزاد صاحب نے جو کانگریس کو دھوکہ دیا، جو کانگریسی آج یہ بہانہ لگاتے ہیں کانگریس کو دھوکہ دیا، تو میرے کانگریسیوں آزماؤ، آج آپ کے آزمانے کا ٹائم آ گیا ہے، جیتو۔ میں کارا کی سرزمین سے پوری ریاست جموں کشمیر اور ملک کی کانگریس کو کہنا چاہتا ہوں، ایک سیٹ نکال کے دکھاؤ۔ اگر تم اس گاندھی کے نام لیوا ہو، پوری ریاست سے ایک سیٹ نکالو۔ میرے دوستو، آپ کو آزاد صاحب نے کل دفن کر کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ دیا ہے۔ آخر آزاد صاحب کو کیا مجبوری پڑی کہ کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دینا پڑا، جس کانگریس میں انہوں نے 50 سال تقریباً 50 سال راج کیا تھا، حکومت کی تھی، چیف منسٹر بھی رہے تھے، اور آج اس کانگریس پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ پیش کیا۔ کانگریس پارٹی کو اس لیے مانتے تھے اپنا کیونکہ ہم آزاد صاحب کے ساتھ تھے، اس کے آگے کی لیول کو نہ پیچھے کی لیول کو ہم جانتے تھے، ہم آزاد صاحب کے ساتھ ہیں اور آنے والے سمے میں بھی ہم آزاد صاحب کے ساتھ ہیں۔ آزاد صاحب ریاست جموں کشمیر کے نہیں، پورے بھارت کے ایک مایہ ناز سپوت ہے، اور جو بھی ترقی کا کام شروع ہوا وہ آزاد صاحب کے دور میں ہوا۔ ہم کانگریس کے ساتھ نہیں تھے، ہم آزاد صاحب کے نقش و قدم پر تھے۔ کانگریس ختم، کانگریس ختم۔ کانگریس کا مطلب غلام نبی آزاد۔ اگر غلام نبی آزاد نے کانگریس چھوڑا تو کانگریس کا جو ہے وہ رات کو آپ نے نہیں دیکھا، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کانگریس از نو مور ان ریاست جموں کشمیر، تو مر چکی ہے۔ تو مرے ہوئے لوگوں کی باتیں لگانا ہمارے لیے بھی فرض نہیں بنتا ہے، ہم بھی جو ہے مردوں کے ساتھ جو ہے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ Khalsa College of Engineering and Technology, an institute of Khalsa College Governing Council established in 1892, is one of the leading college of India, giving education to young birds with all advanced facilities, having well experienced and well qualified faculty who nurtures potential of students through quality education. Admission open for session 2022 to 2023 batches in various courses like BSc and MSc in Anesthesia and OT, Medical Lab Sciences, Radio Imaging Technology, BSc Forensic Science, BSc Cardiac Care Technology. Enroll now. To know more about admission process, do contact our numbers 6005760085, 9906799204, 8713099191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ شکیل، آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائمز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع ڈوڈا کی تحصیل کہرا کے اندر، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ تحصیل کہرا کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے کل سنا ہوگا جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں کانگریس پارٹی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کو کانگریس کی بیک بون مانا جاتا تھا، جس کو کانگریس کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا تھا، وہ آزاد صاحب کانگریس سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جموں کشمیر کے سینئر رہنما تھے، سینئر لیڈر تھے، میکسیمم وہ بھی آزاد صاحب کے ساتھ ساتھ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں موجود ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل کہرا کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا جموں کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کی ہر اضلاع کے اندر جس طرح سے کانگریس کے لیڈر، کانگریس کے جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے، جو پیارائز تھے، کانگریس کے ساتھ وابستہ تھے، وہ سب کے سب کانگریس پارٹی سے بنیادی رکنیت سے اپنی پوزیشن سے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بلاک کہرا کی BDC چیئرپرسن، انہوں نے بھی استعفیٰ پیش کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بلاک کہرا کے PRIs ہیں، کانگریس نمائندے تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ پیش کیا۔ اور آج
आज़ाद साहब की सपोर्ट में कहरा में आकर इन्होंने एक हमायत उनकी तरफ पेश की है, उनकी तरफ सपोर्ट की है। बहरहाल हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज़ाद साहब को क्या मजबूरी पड़ी कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिस कांग्रेस में उन्होंने 50 साल तकरीबन 50 साल राज किया था, हुकूमत की थी, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, और आज उस कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया। बहरहाल इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए बीडीसी चेयरपर्सन कहरा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर इन तक क्या इतलात मिली है जो आज़ाद साहब ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैम, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहता हूं कि आज़ाद साहब का इस्तीफ़ा पेश हो चुका है, इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आखिर आप तक क्या इत्तला मिली है कि आज़ाद साहब को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? देखो, कल से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में एक दुखद खबर सामने आई है कि आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। तो हमें किस वजूहत पे आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, हमें उस वजूहत तक नहीं जाना है। हम जिस वजूहत से आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि आज से पहले भी हम आज़ाद साहब के साथ थे, हम कांग्रेस पार्टी को इसलिए मानते थे अपना क्योंकि हम आज़ाद साहब के साथ थे। इसके आगे की लेवल को ना पीछे की लेवल को हम जानते थे, हम आज़ाद साहब के साथ हैं और आने वाले समय में भी हम आज़ाद साहब के साथ हैं और आज की स्टेज में भी हम आज़ाद साहब के साथ हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, जिस तरह से बीडीसी चेयरपर्सन का कहना है कि हमें आज़ाद साहब के इस्तीफे से मतलब नहीं है, आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा किस बुनियाद से दिया है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस हम आज़ाद साहब के साथ थे जब कांग्रेस में थे, आज़ाद साहब के साथ थे, और अब जब आज़ाद साहब रियासत में आ चुके हैं, रियासत में आएंगे, हम आज़ाद साहब के साथ हमेशा होंगे। बहरहाल यहाँ और भी साथी हैं, और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज़ाद साहब के इस्तीफे को लेकर? हाँ, कल जो हमने खबर सुनी बहुत दुखद की खबर है, लेकिन जब भी हम अरसा 2 साल से आज़ाद साहब से मिलते थे तो हम कहते थे आज़ाद साहब दिल्ली को खैराबाद करो और जम्मू कश्मीर को संभालो। तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को, इन गरीबों की दुआओं को कबूल किया, तो अल्लाह ताला ने सुन लिया, तो आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया। तो आज़ाद साहब को मौका आया कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों, इस गरीब जनता का जो है वो खिदमत करेंगे और गरीब जनता की जो है फरियाद सुनेंगे। तो हम ये मुबारकबाद पेश करते हैं, और यहाँ के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब मिलत को छोड़कर सब लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ हैं। हम आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े थे, हम आज़ाद साहब के साथ खड़े थे, हैं भी, और इंशाल्लाह आज़ाद साहब के साथ हम रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, ये फारूक अहमद शिकारी हैं, जो कांग्रेस ब्लॉक सदर कहरा थे, और बीच में गड़बड़ भी हुई इनके साथ, जो हमने ही न्यूज़ की थी, हमने ही कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने जा रहे थे। आखिर इनको भी कोई इख्तलाफ था पार्टी के अंदर, जो पार्टी के साथ ये जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे थे, वो खबर भी हमने चलाई थी। लेकिन इस वक्त ये जो नारा दे रहे हैं, आज़ाद साहब का नारा दे रहे हैं, और इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज़ाद साहब के इस्तीफे को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद जो है आज में आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है इस वक्त आपको ये सवाल नहीं पूछना था, लेकिन मैं ये सवाल को जोड़ के जवाब दूंगा। शायद मैं उस वक्त हक पे था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब वज़ीर आज़म साहब के साथ बातें की रियासत जम्मू कश्मीर की बका के लिए, रियासत की वापसी के लिए, लैंड की गारंटी के लिए, जॉब की गारंटी के लिए, तो कुछ लोग जो कम सियासत जानते हैं, जिनकी महदूद सोच होती है, उन्होंने कहना शुरू किया कि आज़ाद साहब जो है वो मोदी साहब का चहीता है। और जब मैंने भी ट्राइबल की बात करने के लिए मौजूदा सरकार की मशीनरी से बात की थी, तब ये बात कही जा रही थी कि फारूक शिकारी भी जो है वो बीजेपी के राब्ते में है। तो मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के फैसले के साथ फारूक शिकारी का फैसला भी जुड़ गया। तो मैं उसमें न जाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट कल तक था, पोस्ट पे बना हुआ था, लेकिन जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुल्क के अंदर अपना इस्तीफा पेश करके पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी रियासत के अंदर एक भूचाल ला दिया, एक जलजला आ गया, पूरी हिंदुस्तान की मीडिया हिल गई,
पूरी हिंदुस्तान की सियासत जो है वो अपनी जगह से हिल चुकी है, यकीन मानिए। और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत अपने कदमों से जैसे जलजला आया, उसी जलजले की वजह से हिल चुकी है। और आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेवा हैं, हम उसके चाहने वाले हैं जिसको पूरी दुनिया चाहती, पूरा मुल्क चाहता, पूरी रियासत चाहती है। तो फिर आज हम अगर इस्तीफा पेश कर रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं लगा रहे हैं। ये वो गुलाम नबी आजाद साहब है कि जिसने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के बसाने की बात की, बेरोजगारी खत्म करने की बात की, यहाँ तहसीलें उसने खोली, डिस्ट्रिक्ट खोले, अस्पताल दिए, रोजगार दी, जमीन की जो है मालिकाना हकूक गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। अगर आज उसके साथ 50 साल के बाद धोखा होता है तो मैं आपके चैनल से पूरी रियासत के लोगों को कहना चाहता हूं कि जनाबे वाला आजाद साहब के साथ 50 साल के बाद धोखा होता है। आप कौन लोग हो? आप क्या सोच रहे हो? क्या आपके साथ धोखा नहीं होगा? यह बहुत बड़ा धोखा हुआ था, क्योंकि मरकज की कांग्रेस नहीं चाहती थी ठोक के रियासत की आवाज को बुलंद करना, बेरोजगारी की आवाज को बुलंद करना, रियासत की वापसी की बात करना, लैंड की वापसी की बात करना। इस गारंटी के साथ वो सौदा करना चाहती थी। गुलाम नबी आजाद साहब ने 5 अगस्त को जो तकरीर की है, रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिमाग में वो घुस चुकी है। अब ज्यादा लंबा ना करते हुए फारूक साहब आपसे मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपको कांग्रेस के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने आज़ाद साहब से भी काम किया और जितने भी सीनियर रहनुमा उनके साथ काम किया। आखिर आप तक क्या इतलात मिली? जिस तरह से कांग्रेस के कुछ सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने जो है कांग्रेस को धोखा दिया है। 50 साल कांग्रेस में उन्होंने राज करने के बाद कांग्रेस ने उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया और मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का मौका दिया, लेकिन इस वक्त जो है आज़ाद साहब ने जो कांग्रेस को धोखा दिया। क्या कहेंगे? हर बात के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू कांग्रेस को याद है कि गुलाम नबी आजाद साहब किन किन ओहदों पे रहा, किन किन पोस्टों पे रहा, ये उनको याद है। लेकिन उनको ये बातें भूल गई कि गुलाम नबी आजाद साहब ने पूरे मुल्क की कांग्रेस को कितनी रियासतें जताई है, कितनी बार सरकार में लाया है, कितनी बार पूरी दुनिया में जो है बड़े बड़े जो इनामात दिए गए हैं। जब एज ए हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब था, आप याद करो तो हिंदुस्तान की कंट्री को जो इनाम दिया गया था वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिलाया था। और रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार अगर रियासत में कांग्रेस का वजीर आला बना तो वो गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से बना था ना। जो कांग्रेसी आज ये बहाना लगाते हैं कांग्रेस को धोखा दिया, तो मेरे कांग्रेसियों आजमाओ, आज आपके आजमाने का टाइम आ गया है। जीतो। मैं कारा की सरजमीन से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और मुल्क की कांग्रेस को कहना चाहता हूं, एक सीट निकाल के दिखाओ। अगर तुम उस गांधी के नाम लेवा हो, पूरी रियासत से एक सीट निकालो। मेरे दोस्तों, आपको आजाद साहब ने कल दफन करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया है। आपका खात्मा हो गया है। कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। कांग्रेस का मतलब गुलाम नबी आजाद। अगर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ा तो कांग्रेस का जो है वो रात को आपने नहीं देखा, बहुत से लोगों ने लिखा है कांग्रेस इज नो मोर इन रियासत जम्मू कश्मीर। तो मर चुकी है। तो मरे हुए लोगों की बातें लगाना हमारे लिए भी फर्ज नहीं बनता है। हम भी जो है मुर्दों के साथ जो है बहस करना नहीं चाहते हैं। वो मर चुके हैं और मरते मरते भी कुछ बिल बिलाते हैं, तड़पते हैं। जब तक जान निकली, वो जान निकल जाएगी जिस वक्त इलेक्शन के मैदान में आ जाएंगे। तो हम यहाँ के लोग आज़ाद के नाम लेवा हैं, आज़ाद के साथ चलना चाहते हैं। और आज़ाद साहब को वो सारी फाइलें याद हैं जो छोड़ कर गए थे। वो टेबल पे छोड़ी हुई फाइलें गुलाम नबी आज़ाद साहब के दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए उन्होंने बड़ा फैसला किया। लोग बोलते हैं गुलाम नबी आज़ाद ने धोखा दिया। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत बड़े आसमान से छलांग लगा के अगर नीचे आया, वो किस लिए आया? ओहदे के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, और रियासत के लोगों के लिए, रियासत की वापसी के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, जिनकी जमीनें छीन ली, जिनकी रोशनियात की जमीनें छीनी, जंगलात छीना, माल महकमा छीना, रोजगार छीना, रियासत छीनी, दफा 370 और 35 से छीन लिया। एक चीज बाकी थी, जान।
और मुझे लगता है पहले अल्लाह की ज़ात हमारी जान बचाएगी, उसके बाद आज़ाद साहब भी खड़ा हो गया। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज़ाद साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज़ाद साहब यहाँ का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। गाइस जो यहाँ पे थे उनके साथ आम लोग भी यहाँ शामिल थे और उनका कहना जो है ये सब आज़ाद साहब के साथ थे और आज़ाद साहब के साथ रहेंगे, भला ही वो उनके इस्तीफा देने का कुछ भी मुद्दा मकसद हो। बहरहाल यहाँ पर और भी एक शख्स से भी जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे बताया। जी अभी तक हमारे साथियों ने तफसील से बात रखी है। मेरा कांग्रेस पार्टी के साथ और आज़ाद साहब की वसासत से 40 साल का एक राब्ता रहा है और मैं आज डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, और कल मैंने इसका इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस पे जो आज़ाद साहब ने वहाँ इस्तीफ़ा पेश किया, इस पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा कि उनकी कंदरूरी क्या थी, लेकिन हालात के पेश नज़र यहाँ की कांग्रेस जो है आज़ाद साहब के नाम से ज़िंदा है और आज आज़ाद साहब के आने के बाद वो मुर्दा हो गई है और दफन हो गई है। आज हम सारे लोग यहाँ की ब्लॉक कमेटी, यहाँ की पंचायत कमेटी, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हम इससे रिज़ाइन करते हैं और बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे देते हैं। यहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। हम आज़ाद साहब की शख्सियत जो हमारी यहाँ की थी, उसकी पहचान जो है, उसकी पहचान से हम कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि हमारी ज़बान से कभी भी आज़ाद साहब की मुखालिफ बात करना, चाहे हमें कितनी तकलीफ़ हुई या आराम हुआ, लेकिन हमने मुनासिब नहीं समझा। आज जब उनको दुख दिया गया, उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक हैं और हम अपने पार्टी कांग्रेस से आज उनके हक में अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं बुनियादी मेंबरशिप से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया। आज़ाद साहब के इस्तीफे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ाद साहब का सियासी सफ़र 1973 से शुरू हुआ। इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया और सोनिया गांधी के साथ काम किया। कांग्रेस को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा, लेकिन बदकिस्मती से आज की कांग्रेस इनको पहचान नहीं सकी। आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे भारत के एक माया नाज सपूत हैं और जो भी तरक्की का काम शुरू हुआ वो आज़ाद साहब के दौर में हुआ। हम कांग्रेस के साथ नहीं थे, हम आज़ाद साहब के नक्शो कदम पर थे। बाकी मैंने एक इंटरव्यू सुना जयराम रमेश्वर का, मैं उसको ये चेतावनी देना चाहता हूँ जिन्होंने ये कहा कि आज़ाद साहब हारे भी तब भी सत्ता में होते हैं और जीते भी तब भी सत्ता में होते हैं। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आज़ाद आप जो जिस जगह पर आप बैठे हैं, जहाँ से आप खाना खा रहे हैं, वो आज़ाद साहब ने कांग्रेस को मजबूत किया है और अभी भी आप वो खा रहे हैं, उसी की बदौलत आप खा रहे हैं। आज़ाद साहब एक बहुत बड़े भारी नेता हैं जिनको पक्ष भी और विपक्ष भी जानता है, पूरे भारत के माया नाज सपूत है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी अगला उनका जो भी कदम होगा हम उनके साथ शाना बशाना तैयार हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से कहरा के अंदर आज़ाद साहब की सपोर्ट में ये लोग जो है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पर जो है आज़ाद साहब को सपोर्ट किया। बहरहाल अब आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा देने का क्या मुद्दा मकसद है, जो उनके लेटर में हमने पढ़ा, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी जो है जो कांग्रेस की हायर कमांड है वो उनको बाईपास करते थे। बहरहाल आने वाले वक्त में हम आज़ाद साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ साथ जो भी उनके सीनियर रहनुमाओं ने इस्तीफ़ा दिया है उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। यहाँ पर खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ कॉस्मेटिक और भी दिगर अशिया दस्तयाब हैं। निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी।